A little rewind to my seri today. So this is what my seri looked like. It is the same Weetabix cereal that I made in my first or second vlog. I'm not sure. इसमें दो Weetabix हैं, थोड़े से apples हैं, chia seeds हैं, and today we utilize the raisins, the cashew nuts, and the almonds that we got from Imtiaz that day. So these are the amounts of these dry fruits that I'm going to be using, and this is just to make this a little bit more interesting, a little bit more filling, and all of these dry fruits have amazing properties and I need to feel really full for the day. So this is the most healthy breakfast that I'll be eating today. Now we can go back to today's vlog. Hello to today. So अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ and I'm going for my first laser session at Dr. Nafuda's, and yes, I've just woken up. This is why I look like this. So I will catch you straight at the clinic. Bye. Cause I will be sharing my entire experience with you guys. Okay, so stay tuned. By the way, this is the first time I ever tried this. Doesn't it look so cute? Some things जिसका मैंने खुद ख्याल रखा था was this, that I was not waxing for this entire period of pandemic times, because first of all it's not easy to wax yourself, but anyway I was not waxing, so I was going ahead with shaving because that's easier, that's more convenient, और मैं वही कर रही थी. So that is most recommended for people who want to go for laser. And then you also know कि अभी recently I started shaving my face as well. So this is going to be my first ever proper experience के you know proper first session कराने के लिए. So I am a tad bit nervous because एक तो वहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं और इतने सारे लोग होते हैं, एंड यू नो इट्स नॉट लाइक अ सैलॉन वाला सिचुएशन, इट्स अ प्रॉपर क्लिनिक वाला सिचुएशन, विच इज़ वाई इट सॉर्ट ऑफ गेट्स अ लिटिल यू नो, क्या कैसे बोलूँ, लाइक बंदा बहुत नर्वस हो जाता है, ठीक है. बट आई विल टेक यू गाइज विद मी एंड यू गाइज विल बी शेयरिंग द एक्सपीरियंस विद मी, प्लस whatever question pops in your mind, you better write it down because I will be getting you all the answers that you need. And we're here. So is footage so you guys can tell that this is my second round over here, and surprisingly I'm wearing the same thing in both the vlogs, and I just noticed that everything is the same except my hair. Alright guys, so I'm actually here right now. Assalamualaikum. Let me introduce you to my doctor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. How are you? I'm good. How are you? So this is Dr. Amreen. आज आप क्या करने लगी हैं मेरे ऊपर डॉक्टर अमरीन? आज हम आपका लेजर करने लगे हैं. हम स्टार्ट करेंगे लेजर हेयर रिमूवल. डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर. तो अभी हम पहला स्टार्ट करते हैं हम आपके अंडर आर्म से. यू हैव थिक हेयर और हमारे पास बड़ा अच्छा लेजर है जो थिक पे इवन फाइन पे भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं. लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके अंडर आर्म से. सो यू कैन सी द रिजल्ट एंड यू कैन सी द फील ऑफ द लेजर. Alright. Start now anytime. Thank you. I think we have But I have a lot of facial hair. though they are really fine, and we can do, we have different kinds of laser for the fine hair too. इसके लिए हम ये कर सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन ऑफ रेड लाइट. I have razored my face अभी. Yeah, my face is tinkle razored. मेरे full on bushy growth है वरना चेहरे पे. Peach fuzz ही है, but bushy है. Peach fuzz. This is thick. वी कैन डू कि एक तो या तो जब ऊपर सोप्रानो कराने जाओगे फिर फेस उससे करा लो, क्योंकि जिस तरह आपके बाल के हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर्स हैं. Guys, मुझे ये खतरनाक सी चीज़ें दे दी गई हैं अपनी आंखों पे डालने के लिए. And this is the machine right here, and that is the nozzle. Oh my god, I hope this doesn't hurt. ये भी मेरे होंगे या ये आपके हैं? Okay. God, guys, I was so scared for the underarms. It was so quick. It was less than 30 seconds each, and no, it did not hurt. It did smell like something's burning, like, it didn't hurt like that. Nothing. I'm surprised. I was so nervous. I just put on some covering to show you guys and tell you guys about what happened. It did not hurt as bad as I thought it would. मतलब 2 सेकंड था जब जान निकल गई थी कि like oh, and they were like it's done. The doctor is so nice. वो मुझसे बातें करती रही और आपको पता मैं कितनी बातूं नहीं हूँ, so मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई and it went so good.
I'm surprised. And now it's time for my bushy bushes, the real bushes. It's not gonna hurt either, right? A little bit. अभी आज ये होगा कि we are not doing because for first sitting हम बहुत high पे नहीं जा रहे. We will gradually increase the intensity. मैं क्या करूँ? You just need to put your tongue over here now. अच्छा, like upper lips. Yeah, that's like upper lip. That's it. Now this way. Now press your lips. And that's it. Now lower lip. And my chin? And what chin too? Yeah. Chin is okay. Okay, मैं ऐसी बस डरी हुई थी because you know I'm not used to this. The experience wasn't bad. Okay. So inshallah next time you'll be much better because next time में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके आओगे. So I think जैसे चिन में मुझे डर नहीं लगा ना because वो इतना सेंसिटिव एरिया नहीं है. Did you guys witness that? इतना easy था बाकी सारा भी. Can you imagine? Like 30 seconds से भी कम and we're done. Oh my god, guys. Listen. It really was so surprisingly painless. मुझे इतना डर लग रहा था. I thought that when they're going to start, it's going to hurt like crazy because ये सारा equipment बहुत scary होता है, ठीक है? And वही बात है कि 12 महीने तक आते रहना है, पूरे साल आना है for the sessions and everything. The doctor was so nice. बड़ा awkward लगता है बंदे को इस तरह, you know, किसी और के सामने. But she was so nice that I instantly felt comfortable. That's the best part. So the underarms, underlegs and my upper lips and chin, these 4 things were done within like 15 minutes, वो भी बातों को समेत. Now I'm going for the other areas. Honestly speaking, मेरा इतना ज़्यादा first time है कि मैं nervous हुई भी हूँ. अजीब, पता नहीं इधर उधर हो रही हूँ. I don't understand. So अभी दूसरे डॉक्टर के पास जाने से पहले आई एम वेटिंग फॉर अ बिट बिकॉज शी इज़ बिजी. तो मुझे डॉक्टर अम्ब्रीन ने कहा था कि आई कैन नॉट वेयर एनी डिओड्रेंट, आई कैन नॉट वॉश द एरियाज विद वार्म वाटर एंड आई कैन नॉट यू नो डू एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कि मतलब एक्सरसाइज नहीं करना है, डिओड्रेंट नहीं लगाना है और गर्म पानी से नहीं धोना है. लाइक शावर भी नहीं करूँगा आज तो इट्स ओके. अच्छी बात है कि मैं शावर लेके आई थी यहाँ पे. बट दिस इज़ जस्ट फॉर 1 डे. और अभी जब मैं वेट कर रही हूँ बिकॉज नमिंग क्रीम नहीं लगाई थी मुझे ऑब्वियसली ये करते हुए, ऑब्वियसली तो नहीं बट लाइक इसको करते हुए मुझे नमिंग क्रीम नहीं लगाई थी. सो नाउ आई सॉर्ट ऑफ फील दैट वो जो था ना का इफेक्ट थोड़ा सा जैसे वो गरम गरम फील हो रहा है. नॉट लाइक बहुत एक्सट्रीम बट लाइक वो फील हो रहा है कि कुछ करवाया, जिस तरह वैक्सीन के बाद भी फील होता है. इट्स वेरी नॉर्मल राइट. अच्छा सो अबाउट हाउ डिड इट हर्ट. मुझे लगता था कि मेरा पेन थ्रेशोल्ड जो है वो आई मीन हाई है. मुझे यही लगता है कि मेरा पेन थ्रेशोल्ड हाई है. लेकिन जब मैं कंपेयर करूं अपनी वो वैक्सिंग वाली सिचुएशन से, मेरा पेन थ्रेशोल्ड बिल्कुल भी हाई नहीं है एक्चुअली. मतलब मुझे दर्द होता है, बहुत आसानी से दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है. बट या फॉर द अंडर लेग्स एंड अंडर आर्म्स मेरा पेन थ्रेशोल्ड हाई है. दैट इज़ वन थिंग फॉर अ फैक्ट. यस, आ जाओ. नाउ आई हैव टू टेल यू गाइज अबाउट दिस लेटर. ठीक है, इस बारे में बात करेंगे. नाउ आई हैव टू गो फॉर गेटिंग अदर पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ डन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. ऑल गुड. यू नो, आप मुझे बताएं कि जो ये सोप्रानो वाला लेज़र है इसमें क्या फ़र्क है जो डॉक्टर अम्ब्रीन ने मुझे किया था उससे. ओके सो बेसिक ये सोप्रानो आइस लेज़र है, ये डायोड लेज़र है और डिफरेंस इसमें वेव लेंथ का थोड़ा सा डिफरेंस है. ये ठंडा फील होगा. ये ठंडा फील होता है. ये कूलिंग लेज़र है. इसमें एक ठंडा जेल लगा के, कूलिंग जेल लगा के, इट्स लाइक अ वार्म मसाज. बहुत लाइट सा, तो पेनलेस लेज़र कहलाता है एंड स्ट्रॉन्ग लेज़र. नाउ आई विल टेस्ट दैट. अच्छा सो अभी मेरी टांग शेव हो रही है पहले जी. एंड लास्ट वाला जो लेज़र था दैट वाज अ हॉट लेज़र. सही है. अब ये वाला कैसा होता है ये मैं खुद बताऊंगी. That's up to me to tell. Look at that.
ये कितना कोई मजे का लग रहा है, स्लाइमी सा। ठंडा है? यस। शो मी। Look at that! Oh my god! अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये बस अब जेल लगाया, इसके साथ हम लेजर करें। Oh, it did hurt. पता नहीं चला। और ये हो रहा है? ये सोप्रानो है। जी। अभी तो फील भी नहीं हो रहा। ये क्या थिक हेयर पे नहीं होता? नहीं, पेनलेस लेजर ही है ये। अगर थोड़ा सा डार्क स्किन होगा तो बेसिक इसको इंटेंसिटी के साथ हम सेट करते हैं ना, तो जितना आप डार्क स्किन है उतना इंटेंसिटी के हिसाब से, और जितना फेयर है उस हिसाब से। तो ये बिल्कुल हल्का सा समटाइम लगता है बोन पे, या थोड़ा सा डार्क स्किन पे हल्का सा वार्म लगता है, बट फील हो रहा है, बट बहुत हल्का सा मसाजी टाइप का। अच्छा, उस वाले में तो मेरी हवा टाइट हुई हुई थी, ये तो अभी हो रहा है, मैं बातें कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज लाइक अ वार्म मसाज। ये तो मजे का सीन है। सोप्रानो इज बेटर आई गेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग पेनलेस। कैन यू सी? ये हो रहा है, अभी एक्चुअली हो रहा है। एंड आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। नाउ व्हेन द हेयर कम्स एंड आई नीड टू रिमूव देम, तो मैं क्या करूँ? डू आई शेव देम? बेसिकली विद इन 10 days दे ऑल डेड ना, लाइक खुद से शेड हो जाएंगे। है अभी आपको सारे? अगर अभी बाल विद इन अ वीक ग्रो बैक करेंगे हाँ। दे ऑल डेड, बस शेड हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद ही शेड हो जाएंगे? डेड होते हैं ना। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब? विल सम हेयर कम आउट? मतलब विल आई नीड टू रेजर इट या नहीं जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले सेशन से ही नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। समटाइम पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट सेशन में होता है कि मे बी आपके 40% बाल शेड ना हो, 60% बाल शेड हो जाए। जो 40% शेड नहीं होते, अगर आपको बॉदर कर रहे हैं तो यू कैन शेव। ओके, तो वी कैन शेव, मतलब ओनली शेविंग इज द। माशाल्लाह जो इतना ज़्यादा या माय लेग्स आर नॉट हेयरी एट ऑल। तो फिर ऐसे अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बोलो। पता चला नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इट्स ओके, अब तो लेजर भी करा दिया। जस्ट सॉ द फुटेज ऑफ मी गेटिंग माय लेग्स लेजर्ड। यार, ये वाला लेजर वाज सो मच बेटर। इट वाज पेनलेस, इट वाज लाइक गरम गरम मसाज कर रहे हैं, मजे मजे का। इट वाज लाइक दैट। आई रियली लाइक दिस वन। एंड वो जो ब्लू सूदिंग क्रीम थी, दैट वाज सो प्रीटी। आई लव्ड इट। Okay, so the update is that the doctor who had to do my arms is not available in this clinic anymore. She's available in the other branch. And I don't know, agar I'm still on the road doing some chores, I will definitely go there because I need to get done with this video today. And आधी में मज़ा नहीं आएगा. That's what I feel. लेकिन देखते हैं आज क्या लक है, देखते हैं आज क्या मूड है, उसके हिसाब से ही सब होगा। I'm just waiting for my car to come. Scenes कुछ ऐसे हैं कि मेरा जो ID कार्ड था वो एक्सपायर हो गया था, मैंने वो रिन्यूअल के लिए दिया हुआ था, एंड टुडे हैज़ बिन अबव 40 days वो मैंने जाकर पिक नहीं किया। सो जब मैं निकल ही आई हूँ बाहर, आई थॉट आई ऑल्सो गो पिक अप माई ID कार्ड बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। ओके, ठीक है, रमज़ान में बंद है, ID कार्ड की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है सबको, पड़ी जाएगी। सो आई एम गोना गो एंड गेट इट नाउ। थोड़ा जो भी करना है कि शॉर्ट में करना है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है नादरा में। Oh my God, look, I got the ID card, but the picture is so dead. मेरी पिछली वाली पिक्चर इतनी बेहतर थी। Oh my God, but this still looks fine, right? It looks. I can't tell you अभी कितना scary scene हुआ है। अभी नादरा के मेगा सेंटर के सामने उतरी ना, तो मैंने जो शॉट दिखाया अभी, there was a guy in some मतलब blue shirt or something. He was following us around. क्योंकि मैंने उसको अपना फ़ोन निकाल के वो शूट तो कर लिया शॉट, बट उसके बाद मेरी हालत टाइट हो गई क्योंकि मैं लेफ़्ट चाहती थी तो वो लेफ़्ट चाहता था, मैं राइट चाहती थी तो वो राइट आना शुरू हो गया। एंड इट वाज सो स्कैरी। ओह माय गॉड, मैं लिटरली रोने लेवल पे डरी हुई हूँ अभी। मुझे करनी थी नादरा के ID कार्ड की कलेक्शन, लेकिन जब मैंने देखा ना कि वो बंदा, अगर मैं राइट जा रही हूँ राइट जा रहा है, लेफ़्ट जा रही हूँ लेफ़्ट जा रहा है, कि कहीं भी गली में मौका मिल जाए टू जस्ट स्नैच समथिंग और डू समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। मैं लिटरली वहाँ पे उन लोगों के साथ ही लग गई। मैंने वेट किया, फिर जब पुलिस की मोबाइल मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है एकदम से,
जो पुलिस की मोबाइल आई ना पीछे, दैट्स व्हेन दैट गाय लिटरली वैनिश्ड एंड ट्रस्ट मी ये ज़्यादा स्कैरी था बिकॉज दैट गिव मी द यू नो प्रॉपर कंफर्मेशन कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन हिज हेड. Oh my god. So now I'm at the other branch. Guys, मेरी नेक्स्ट लेवल हालत टाइट हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट जस्ट हैपेंड. तो मैं अब बाहर ज़्यादा शूट नहीं करूँगी. बहुत बोलते थे ना आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे करते हो पब्लिक में, बस अब नहीं होगा मुझसे कॉन्फिडेंस से पब्लिक में. मैं जा रही हूँ अंदर और मैं अंदर जाके शूट करूँगी. ओके, सी यू. एंड दिस इज़ द अदर ब्रांच. ये ओशन मॉल के बिल्कुल पीछे है बाय द वे. नाउ आई डोंट नो कि क्या सीन है. आई जस्ट नो दैट आई कैन गो टू वन प्लेस इन वन डे टू बी एबल टू डू दीज सेशंस. तो आई ट्राई कि अब मैं एक ही जगह पे जाऊँ, लेकिन आज मैं आ गई हूँ टू ट्राई एंड टेस्ट दीज डिफरेंट मशीन्स and different doctors out for you guys. Okay, मेरे बालों में literally dye patches नज़र आ रहे हैं. अब I need to get my hair properly recolored. White भी हो रहा है I think कहीं कहीं से. पट्टी हो गई है मेरी पट्टी. Alright, so I'm here now and the first thing they asked me was to go wash my face. Although मैंने लगाया हुआ भी सिर्फ moisturizer ही था. I went and I washed my face, not my eyes. This doesn't get affected by laser. So whatever, ठीक है. And there are some really big machines over here. Operation theater level. Like hello. And this is their machine right over here. Let's see if this hurts more or less. After I try this one out, I'm going to compare all three of them and tell you that which one was my favorite. वैसे I know कि Soprano Ice वाला will be my favorite. Because it was so relaxing. I wouldn't mind getting that laser done on my whole body. पहला वाला थोड़ा सा hurt किया था for a fact. थोड़ा सा. But not in a bad way. No, not at all in a bad way. Now this one I don't know कैसा होता है because I think I want to get my face and my arms done by this. Alright, so I just had a mini consultation with the doctor. और उन्होंने कहा कि मेरा बहुत पीच फज है तो मुझे अपने चेहरे को कुछ नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज़ द सेम मशीन दैट आई गॉट माई अपर लिप्स एंड माई चिन लेजर्ड फ्रॉम अलॉन्ग विद द अंडर आर्म्स एंड अंडर लेग्स. सो दिस इज़ द सेम मशीन. बट डॉक्टर नाकुदा वाज सो स्वीट दैट शी वांटेड मी टू गो अहेड एंड ट्राई ऑल 3 डॉक्टर्स. एंड जिन पे भी मैं कंफर्टेबल हूँ या जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगे तो आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड चूज़ दैट. सो दैट्स रियली वेरी स्वीट. But अभी देखते हैं कि कैसा होता है. So the face is out of the question and I'm going ahead with my arms. And that right there is Dr. Asma. Hello. I'm Dr. Asma. Right now I'm treating Fatma. So मैंने भी कंसल्ट किया फातिमा से रिगार्डिंग द हेयर. शी काफ़ी पतला हेयर है तो हमने कहा कि अभी हम थोड़ा छोड़ देते हैं. बट द हेयर ऑन हर आर्म्स काफ़ी थिक हेयर हैं और बहुत अच्छा टारगेट है लेज़र के लिए. एंड शी विल सी द रिजल्ट विद एवरी सेशन. Her session में there is thinning and number of hair will decrease. So let's start with her arms now. That is what my arm looks like, by the way. And this is just shaved like a few days ago, I guess. But yeah, plus strawberry skin, bro. Bad scene. So this right here is step number 1. Hello. Hi. Her eyelashes are so pretty. मैं तो देखते ही बेहोश हो रही थी. Thank you so much. Most welcome. So this is being done right here. Ow. Does this help in reducing pigmentation as well? Yes, it has an element. The laser has an element. It reduces the pigmentation. It smoothens the skin basically. जो आपके रफ स्किन हो रही होती है, आपके इनग्रोन्स होते हैं, उसको सबको सेटल. Guys, it doesn't hurt at all. Not on the arms at least. बिल्कुल भी नहीं. पहले मैं थोड़ा सा फ्लिंच कर रही थी on my face because I didn't know now what to expect out of this. But now I know कि किस तरह से होगा. So it does not hurt. बल्कि ये तो एक अजीब गर्म से ठंडा होता है. This feels like that actually. Is that supposed to feel like that? Yes. Yes. So it's not bad at The all. ठंडा is because of the air that we have. जो Yeah. cool down कर देता है आपका लेजर का जो heat होती है. Yeah, it's really cold. I like it. So guys, that was very Rajnikant of me, but
we're done with the arms as well today. Did you see how satisfying that zip 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 was? It was too satisfying. ठीक है, अच्छा खैर. So now we're done with this and वही वाली बात है कि हर सेक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े से ऐसे कि एक स्लाइट सी टिंगलिंग और एक बर्निंग सी फीलिंग होती है. और जैसे अब मेरी टांगों की ख़त्म हो गई, जिस तरह पहले मेरे अंडर आर्म्स में हो रही थी, फिर मेरे टांगों में हो रही थी, बट नाउ अब कहीं भी नहीं हो रही. एंड नाउ इट्स हैपनिंग ऑन माई आर्म्स एंड आई नो कि ये भी थोड़ी देर बाद चली जाएगी. एंड साथ में मुझे एक एंटी एलर्जी और एक स्किन क्रीम दे रहे हैं ताकि आई कैन जस्ट रिलैक्स, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था. लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट एवर लेजर सेशन, बट इट वॉजंट सो बैड. दैट्स व्हाट आई एम सरप्राइज्ड एट. जाता अभी मेरा फोन. Honestly, so done with all the treatments by now, so I'm just going to head out and go home. Finally, guys, I just realized कि अभी 2:23 हो रहे हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी आधे घंटे में इफ्तार होने लगी है. क्योंकि दिन इतना स्लो गुजर रहा है. What is this? Oh my God, मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है. I just want to have something to eat now. बस Alright, so the overall experience was really good. अगर सच बताऊँ तो I was so nervous. मुझे लगा था it's going to hurt like crazy. Like it all got done really quickly. अगर मैं बोलूँ कि which part really hurt, I think सिर्फ upper lip से मुझे थोड़ा सा feel हुआ था, like हल्का सा. सोप्रानो आइस वाले जो legs वाला था उसमें तो I didn't even feel a thing. जो under arms और under legs थे, I think under legs में there were like 2 zets that I felt. बस and that is it. And उसके अलावा nothing else. It was very pleasant. मैं बता रही हूँ ना, ये एमी scary लगता है. बहुत अच्छा था. I really liked it. I'm impressed. But अब इसके असली effects I'm going to see after a month. क्योंकि तभी पता चलेगा, obviously. यार, I really don't know when will I be able to reveal this to you guys, because I really want to show this to you यार. आज एक ही दिन के अंदर इतना काम कर लिया, ऑनेस्टली इतना सारा, यू हैव नो आइडिया. 9 बजे से अब 3 बज रहे हैं, 3:30 एक्चुअली. सुबह से निकली हुई हूँ, मेरी तो हालत टाइट हो चुकी है. ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल रोज़ा लग रहा है, ऐसा कि मैं क्या बताऊँ कि अभी बस मैं घर जाऊँगी, मैं AC ऑन करूँगी और मैं सो जाऊँगी, बिकॉज इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है. आई नीड टू सर्वाइव टिल इफ्तार, और वो सर्वाइवल मेरा ज़ीरो हो जाएगा. क्योंकि मैं जब रमज़ान ब्लॉग 7 लगा रही थी, उसके चक्कर में आई हैड टू स्टे अप टिल 5 AM, और फिर मैं सोई 6:30 बजे. एंड 6:30 बजे के बाद मुझे दोबारा उठना पड़ गया 9:30 बजे फॉर टुडे. तो हिम्मत ही नहीं थी कोई. खैर, इसी वजह से अब मैं घर जाऊंगी और मैं सो जाऊंगी, एंड आई विल मीट यू गाइस डायरेक्टली एट इफ्तार. I just woke up and it's iftar time just right now. Right in time. आ गई मम्मा. हेलो. इफ्तार से पहले जो मेरा फौतीदगी का आलम था ना, आपको उसका लेवल नहीं पता. ऑनेस्टली आई वॉज सो डेड. मैं अभी उठी हूँ, लुक एट मी. और मैं अभी उठी हूँ, मैंने जल्दी जाकर इफ्तारी की है. येस, आई कुडंट फिल्म इट बिकॉज जब आप हेल्प नहीं ना करते किसी चीज़ में अपने घर में, तो फिर आप अपना कैमरा निकाल के ऐसे व्लॉग करना भी नहीं शुरू कर देते, बिकॉज यू आर स्लीपिंग ड्यूरिंग इफ्तार टाइम. सो कुडंट रिस्क इट, डांटे वांटे पड़ जाती. बट I wanted to update you guys on this entire situation right here. So जब से मैं घर आई हूँ, let me focus this. Focus bro, focus. जब से मैं घर आई तो my arms were actually stinging a lot. As you can see, अभी भी लाल हुए हैं. Like my whole entire arm is red from here. That is the second arm. That is what it looks like. Although मैंने Fexit खा ली थी, जो एंटी एलर्जी इन्होंने सब्सक्राइब की थी, मुझे प्रिस्क्राइब की. As soon as I came back home, मेरे हाथ बहुत ही कोई क्रेजी किस्म के जल रहे थे. That's for a fact. And my legs as well. और इनके ऊपर जो भी निशान बने हुए हैं वो ड्राई शेविंग वाले निशान बने हुए हैं. यानी कि मेरे साथ ये पहले हो चुका हुआ है कि मैंने ड्राई स्किन को शेव कर दिया, और उसके बाद ये जो निशान अभी बने हुए हैं मेरी टांगों पे भी, ये इस तरह के निशान बने रहे. सो
these are only on the legs and on the arms, okay, nowhere else. But इस वाले arm पे काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ भी मुझे नज़र आ रही है. I'm sure that this is normal and I'm sure that this is going to go away eventually. आज के दिन के लिए ही है. I will update you guys about it tomorrow. तो मैंने घर आते ही इसके ऊपर Egyptian Magic Healing Cream लगा ली थी because I googled if it's okay to put any healing cream or any soothing aloe vera gel. Ooh, I have soothing aloe vera gel. I could apply that. मैं अभी YouTube terminologies में जी रही हूँ. I just said I could upload that. कहाँ है मेरा दिमाग? So I will update you guys if this gets better or if it doesn't, but let's hope it does. Honestly तो मैं बहुत ही ज़्यादा excited हूँ to see कि क्या results आते हैं, and I'm just feeling really excited to be, you know, experiencing all of this as well. I just wish कि मैंने पहले ही थोड़ा सा शेव कर लिया होता. ऑल्दो मुझे कहा था कि शेव करके नहीं आना, जो भी थोड़ा थोड़ा स्टबल उगा हुआ है. ऑल्दो आई ओनली हैड अ स्टबल एवरीवेयर, सो द डॉक्टर विल शेव इट हरसेल्फ, और उनको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपकी ग्रोथ कैसी है, क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट. तो ड्राई शेव ने मेरी हालत टाइट कर दी है. एंड जब ये मुझे ड्राई शेव वाले स्पॉट्स होते हैं ना, ये जो जिस किस्म की एलर्जी या इरिटेशन होती है, इट्स क्रेज़ी. मतलब वो बहुत ज़्यादा होती है. इट्स हैपन टू मी बिफोर. बस उसकी जलन जो है ना, दैट इज़ क्रेज़ी, एंड आई थिंक इट विल सबसाइड विद इन लाइक अ डे और टू. तो उसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए. सो आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज अब यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म हो गया है. एंड बाय.